Good morning. Welcome back to the channel Awesome Learning. In the chapter Biodiversity and Conservation, now we are going to study about biodiversity conservation, how to conserve our biodiversity. So, biodiversity reasons for conservation. Now, why do we want to conserve it? There are three reasons. First is narrowly utilitarian arguments were there, broadly utilitarian arguments, and some ethical arguments. So we will be doing all these reasons of conservation one by one. So the first one is narrowly utilitarian arguments. Now you see, human derive economic benefits from nature. Now we take everything from nature, from food, firewood, fiber, construction material, industrial products like tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes, and medicines. Everything we take from nature. Then 25% of the drugs are derived from the plants that we depend on these drugs. Then 25,000 species of plants have medicinal values. So this is all narrowly utilitarian arguments. Okay. Then we come to broad arguments. That is how what is the फायदा, ये जो हम फायदा उठाते हैं, जो लार्ज कह सकते हो कि आप बड़े फायदे जो हम नेचर से उठाते हैं, ये तो छोटे फायदे हम जो नेचर से उठाते हैं, ठीक है। तो जो बड़े फायदे हैं जो हम नेचर से लेते हैं वो है अमेज़न फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फायदा है जो हम नेचर से ले रहे हैं। देन पॉलिनेशन थ्रू बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स। ओके। देन एस्थेटिक प्लेजर, जो हम नेचर का सुख लेते हैं, खूबसूरती का, हम स्पेशली उठकर हिल स्टेशंस पर जाते हैं बिकॉज वी वांट टू गेट अ सूदिंग इफेक्ट, है ना। हम इस भीड़ भाड़ से, इस रश से बाहर जाना चाहते हैं नेचर में। अब आपने देखा है कि पीपल नाउ लव टू बी इन फॉरेस्ट, वो स्पेशली हट्स ढूंढते हैं, फॉरेस्ट ढूंढते हैं, ऐसी जगह पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं जहां लोग कम हो। Why? Because they want to take aesthetic pleasures from nature. So this is broad utilitarian arguments. Then ethical arguments are every species has an intrinsic value. सबकी एक अपनी particular value है, चाहे एक छोटी सी चींटी हो या एक blue whale हो. We have our moral duty to take care of the well-being. तो we cannot say that this earth is ours, या ये ऑक्सीजन हमारी है, ये पानी हमारा है, हमारा कुछ भी नहीं है. It is been shared by all the organisms. तो टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, हम कैसे इनको बचाएं, कंजर्व कैसे करें। एक है इन सीटू कंजर्वेशन, यानी उसी साइट पे जाके कंजर्व करना, और एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी ऑफ साइट। Now let's see. First, in situ, that is on site, the conservation of genetic resource within natural or human made ecosystem in which they occur. जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो belong करते हैं, उसी एरिया को naturally या man-made ecosystems की help से conserve करना, that is called in situ conservation. इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे नेशनल पार्क बनाए हमने, सेंचुरीज बनाई, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए, कल्चरल लैंडस्केप्स बनाते हैं, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स हम बनाते हैं, ये सब इन सीटू है। Right. India में there are 14 biosphere reserves, 90 national parks, and 448 wildlife sanctuary. So these all come under in situ conservations. Now in situ conservations, if you see national parks strictly reserved for welfare of the wildlife, where private ownership or cultivation or grazing is prohibited. मतलब ऐसे ही नहीं जो गांव वाले हैं, जो उस एरिया के लोग हैं, अपने जानवरों को वहां भेज देंगे, जाओ ग्रेजिंग कर ले, नहीं, that is prohibited. Example, Eraviculum National Park in Kerala. This is the national park in Kerala. Okay. Then sanctuary, as you see here, protection is given only to the animals.
Okay, so collection of timber, minor forest products, private ownerships are allowed. यहाँ पर allowed है. आप आसपास के लोग जो हैं, गांव के लोग हैं, वो जाके वहां से टिम्बर कलेक्ट कर सकते हैं. और भी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हनी कलेक्शंस हो सकती हैं और भी चीजें, दे कैन गो एंड कलेक्ट. प्राइवेट ओनरशिप्स भी है, एज दे डू नॉट, बट एनिमल्स को कोई हार्म नहीं होना चाहिए. दे कैन go and take the use of the nature or the sanctuary में से जो भी चीजें वो लेना चाहे वो ले सकते हैं. एग्जाम्पल है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ केरला. Then biosphere reserves are the areas of land or coastal ecosystems for conservation and sustainable use. तो biosphere land, यहाँ पर सिर्फ एनिमल को प्रोटेक्शन है, लेकिन यहाँ पर लैंड और कोस्टल इकोसिस्टम्स का कंजर्वेशन एंड फिर उसको यूज कैसे करना है. तो एग्जांपल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है. नाउ चिल्ड्रन हियर सेक्रेड ग्रुप्स या सेक्रेड फॉरेस्ट इन सीटू कंजर्वेशन में ये भी आ जाते हैं. फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स विच आर कम्युनली प्रोटेक्टेड बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ, यानी एक कम्युनिटी है जो उस फॉरेस्ट को बचा कर रखती है क्योंकि उनका उसके ऊपर कुछ रिलीजियस बिलीफ है. वो उसको बहुत ज्यादा रिलीजियसली प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो उसको अपना भगवान मानते हैं या कुछ भी उनके रिलीजन से रिलेटेड है. तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी क्योंकि वो उनके रिलीजन से रिलेटेड है तो वो कम्युनिटी ही उसका प्रोटेक्शन करती है. So that is sacred groves. Sacred groves in Khasi and Jainta hills of Meghalaya, then Aravalli hills of Rajasthan, Western Ghats regions of Karnataka and Maharashtra, Sarjuga, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. These are the sacred groves. So ये सारी चीजें हैं in situ conservation का part, right? Then we come to ex situ, that is off-site. In this conservation of organism outside their habitat, यानी हम उनके habitat के बाहर उनको conserve करने के लिए कुछ कर रहे हैं. That is ex situ. ये तो हम उन्हीं के habitat में रहकर हम उनकी protection कर रहे हैं. But यहाँ पर outside their habitat, जैसे genetic resource centers हैं हमारे पास, ठीक है. एक्सीटूज में क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं, ठीक है. हम उनके हैबिटेट के बाहर आके हम उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं. सो उसके अलावा बोटानिकल गार्डन्स हैं, जीन बैंक्स हैं, क्रायो प्रिजर्वेशंस हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं वो आउटसाइड, बिकॉज उसके पर्टिकुलर हैबिटेट में नहीं है, आउटसाइड द हैबिटेट है, इसलिए ये एक्सीटू है. हॉटस्पॉट्स देखते हैं. These are the regions with very high species richness. Hotspot. तो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही होते हैं, कहीं और नहीं पाए जाते. यानी पूरी अर्थ पे एक ही एरिया है जहां पर वो स्पीशीज अवेलेबल है. तो स्पीशीज कन्फाइंड ओनली टू अ स्पेसिफिक रीजन बट मोस्टली थ्रेटन. अब ऑफ कोर्स क्योंकि वो एक ही रीजन में है और कहीं पाए ही नहीं जाते, तो अगर वो रीजन से भी वो चले गए तो दे विल बी थ्रेटेंड एंड दे विल बी एक्सटिंक्ट. तो देयर आर 34 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, जिसमें से 3 हॉटस्पॉट्स इंडिया में ही हैं. वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय. ये 3 हॉटस्पॉट्स जो हैं वो इंडियन बायोडाइवर्सिटी रीजन को टच करते हैं. Now hotspots, you see, there are the regions with very high species richness, as I told you. Why are they called hotspots? क्योंकि ये वो regions है जहां पर variety of species बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा species है यहाँ पर, मतलब variety बहुत ज्यादा है. Okay, so that is why ये they have shown you all the pictures. You see, this is Western Ghats hotspots, Western Ghat. This is Indo-Burma hotspot. See, variety is a lot more. Himalaya. All hotspots together cover less than 2% of the Earth's land area, but the species richness is extremely. Area कम है, ठीक है, land area कम है, but species की richness बहुत ज्यादा है वहां पर, तभी वो हॉटस्पॉट है. तो हमें प्रोटेक्शन ऑफ हॉटस्पॉट्स बहुत करने हैं, क्योंकि अगर हम हॉटस्पॉट्स प्रोटेक्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली वी आर प्रोटेक्टिंग ऑल दो स्पीशीज विच आर एंडेमिक. और क्योंकि वो एंडेमिक है तो वो थ्रेटेंड कभी भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी एक्सटिंक्ट. तो हम अपना एक्सटिंक्शन को रोक सकते हैं. जो हमारा एक्सटिंक्शन रेट है दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय 30% अगर हम हॉटस्पॉट की ही केयर कर लें. अगर हम अपने